Hello friends, now I am going to solve some numerical on the topic of potential and potential difference. The question is, calculate the work done in moving a charge of 2 coulomb through a potential difference of 5 volt. Clear? तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है वो हमें लिखना है. तो यहाँ पे आपका टोटल चार्ज कितना है? Q equals to 2 coulomb and potential difference equal to 5 volt. Then we know about the formula of potential difference, work done and charge. Potential difference equals to, you can write VA minus VB equal to W by Q. So here potential difference is 5 volt. 5 volt equal to W कितना हो जाएगा? W कैलकुलेट करना और Q हो जाएगा कितना? 2 coulomb. So the work done W equals to 5 into 2 equal to 10 जूल. वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना. नाउ यू कैन सॉल्व. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मिली जूल ऑफ वर्क इज डन. 2 millijoule of work is done in moving a charge of 10 की पावर minus 6 coulomb from one point to other, from one point to another. So what is the potential difference between 2 points? What is the potential difference between 2 points? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. 2 millijoule of work is done in moving a charge of 10 की पावर minus 6 coulomb from one point to another. What is the potential difference between 2 point? 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो आप देख लीजिए वर्क डन कितना है. W हमारा है 2 मिली जूल, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे. 2 इंटू 10 की पावर minus 3 जूल. क्लियर? और चार्ज दिया हुआ है Q इक्वल्स टू गिवन है कितना, 10 की पावर minus 6 कूलम. देन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, W by Q. नाउ पुट द वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर minus 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर minus 6 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर minus 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट. इस तरीके से आप इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. बहुत आसान फॉर्मूला है ये, न्यूमेरिकल भी इससे बहुत आसान होता है. क्लियर? देख लीजिए इसको. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. This is the symbol of electric cell. There is two terminal. One is bigger and other is smaller. Bigger terminal represent higher potential and smaller terminal represent lower potential. Battery is the group of cell that is called battery. Plug key, this is the open and this is the close. Now this is the resistor. It is the symbol of resistor. This is the symbol of variable resistor. This is rheostat. Variable resistance is called rheostat. This is the symbol of ammeter. This is the symbol of voltmeter. This is the symbol of galvanometer. And this is the symbol of fuse. तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत ही सिंपल सा चीज है. ठीक है, नोट कर लीजिए. Now I will discuss Ohm's law. Basically, Ohm's law states that at constant temperature, current flowing through conductor is directly proportional to
अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट करते हैं तो जो किसी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो जो उस कंडक्टर ये सर्किट के थ्रू जो करंट होता है उसका जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है। सो एट फर्स्ट राइट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, according to Ohm's law at constant temperature current flowing through conductor is directly proportional to applied potential difference। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका अगर हम डेरिवेशन देखें तो V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, I का होगा। क्लियर। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटाते हैं इसके बदले में कांस्टेंट आता है क्या, K इंटू इसके बदले में कांस्टेंट आता है R इंटू I। क्लियर। वेयर R is constant called resistance of conductor। जो R क्या है, एक कांस्टेंट है, that is called resistance of conductor। So this is the Ohm's law। ये कहता है कि टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट करते हैं तो जो किसी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है that is directly proportional to applied potential difference, यानी V directly proportional to I। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इसके बदले में एक कांस्टेंट टर्म आता है R, where R is a constant that is called resistance of conductor। R जो है एक रेसिस्टेंस है। क्लियर। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको लिखिए। Now I will plot the graph between potential difference and current। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्लियर, तो आप जानते हैं कि जो V होता है, V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और वो ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा। क्लियर। सिंपल सा ग्राफ है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और वो कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। क्लियर। थोड़ा अगर हम और इसको डिटेल से जाने तो अगर हम देखें कि मान लेते हैं कि V1 पोटेंशियल पे करंट हमारा कितना है, I1 है, और V2 पोटेंशियल पे हमारा करंट कितना है, I2 है। तो ग्राफिकली इसको हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये मान लेते हैं V1 है और ये क्या है, V2 है, ये I1 है और ये I2 है। तो इसका हम देखते हैं ग्राफ। देखिए इसका जो ग्राफ है ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करके इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। क्लियर। एक ट्रायंगल बन जाता है ए बी और सी। इस ट्रायंगल का हम इस ट्रायंगल में देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर। स्लोप देखना है, स्लोप किसी भी ट्रायंगल का जब हम स्लोप निकालते हैं वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, इस ट्रायंगल का AC बाय BC, और AC कितना हो जाएगा,
यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा v2 माइनस v1, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा i2 माइनस i1। क्लियर। अब हम इसका निकालेंगे स्लोप। AC कितना हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय i2 माइनस i1। नाउ वी कैन राइट स्लोप इक्वल टू डेल्टा v by डेल्टा I, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन करंट। चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन करंट। क्लियर। तो पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है? क्योंकि पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन करंट बताता है रेसिस्टेंस को। सो वी कैन राइट, सो द slope of potential versus current graph gives resistance. So the slope of potential versus current graph gives resistance. Clear? तो ये ग्राफ है, ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर सिंपल बनाना चाहते हैं पोटेंशियल और करंट के बीच का ग्राफ तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ, स्लोप से अगर देखना चाहते हैं कैसे ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर, तो उसके आधार पे मैंने आपको बता दिया कि जो स्लोप होता है पोटेंशियल वर्सेस करंट का जो ग्राफ होता है वो क्या बताता है? रेसिस्टेंस को बताता है। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। मैं एक पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि जो आपका ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, बिकॉज कोई भी कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो लो टेम्परेचर पे ही फॉलो करता है। हाई टेम्परेचर पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे होता क्या है कि जो हाई टेम्परेचर पे उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और रेसिस्टेंस बढ़ने से उसका जो करंट की वैल्यू होती है वो घट जाती है। सो ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। क्लियर। You can write Ohm's law is not an universal law. Ohm's law is not an universal law, and all conductor does not follow Ohm's law. सारे कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। द कंडक्टर which follow the Ohm's law called ohmic device. The conductor ohmic device.